آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ملک کی۔ یہ ملک خاص طور پر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش نے اپنی لڑکیوں کی وجہ سے مشہور ہے، جو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے خود ہی مشہور ہے۔ جتنی یہ خوبصورت ہے اتنی ہی عیاش بھی۔ دنیا کا سب سے ٹھنڈا شہر بھی اسی ملک میں موجود ہے، سب سے لمبا ریوولے سسٹم بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو شاید آپ نے اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا۔ جی ہاں میری جان، آج ہم روس کی سیر کریں گے۔ آج ہم جانیں گے اس ملک میں لوگوں کی زندگی کیسی ہے، یہاں کی خوبصورتی، لڑکیاں اپنی زندگی کو کیسے انجوائے کرتی ہیں، روس کی ایسی نائٹ لائف جسے دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے، سب سے ٹھنڈے شہر میں لوگ کیسے رہتے ہیں، ایسی بہت سی دلچسپ اور حیران کر دینے والی معلومات آج ہم اس ملک کے بارے میں جانیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، تو اسے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ساتھ ہی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ ایسی دلچسپ معلومات والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ رشیا، جسے روس کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے، یہ ملک رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور یہ آدھا ایشیا میں اور آدھا یورپ میں موجود ہے۔ اس کا تقریباً 77% حصہ ایشیا میں آتا ہے، جبکہ 32% حصہ یورپ میں موجود ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رشیا میں ایک ہی وقت میں سورج نکلتا بھی ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، یعنی اگر اس کے ایک حصے میں رات ہوگی تو دوسرے حصے میں دن ہوگا، اور اگر دوسرے حصے میں دن ہوگا تو ایک حصے میں رات ہوگی۔ اگر بات کریں اس کے ایک کل رقبے کی تو یہ تقریباً 17.1 ملین مربع کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ اس عظیم ملک کی سرحدیں 14 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں ناروے، فن لینڈ، آذربائیجان، بیلاروس، چین، جارجیا، ایسٹونیا، قازقستان، شمالی کوریا، لیٹویا، لیتھوانیا، منگولیا، پولینڈ اور یوکرین شامل ہے۔ ماسکو روس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے، جو اپنی شاندار تاریخ، طاقتور سیاست اور جدید طرز زندگی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے روس کی طاقت کا مرکز رہا ہے، جہاں کرملن، ریڈ اسکوائر اور سینٹ بیسل کیتھیڈرل جیسے تاریخی مقامات موجود ہیں۔ ماسکو نہ صرف روس کا سیاسی دل ہے، بلکہ معیشت، ثقافت اور ٹیکنالوجی کا بھی اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر سے گزرنے والے دریا کا نام ماسکو ہے، اسی وجہ سے اس شہر کو بھی ماسکو کا نام دیا گیا۔ ماسکو، جو کہ تقریباً 2560 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ شہر آبادی کے لحاظ سے پورے روس میں سب سے آگے ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق 1.5 کروڑ کے قریب افراد صرف اسی شہر میں آباد ہیں، جو اسے روس کا سب سے گنجان آباد شہر بناتا ہے۔ روس کا دوسرا بڑا شہر سینٹ پیٹرزبرگ ہے، جو بحیرہ بالٹک کے کنارے واقع ہے۔ یہ شہر اپنی تاریخی عمارتوں، خوبصورت نہروں اور شاندار ثقافت کی وجہ سے روس کے سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ روس میں استعمال ہونے والی سرکاری کرنسی کو روسی روبل کہا جاتا ہے۔ روس رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اسی وجہ سے یہاں کل 11 ٹائم زونز چلتے ہیں، جو مغرب میں یورپ سے لے کر مشرق میں بحر الکاہل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر ماسکو میں صبح کے 9 بجے ہوں تو روس کے مشرقی حصے میں شام ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روس میں سورج ایک ہی دن میں مختلف اوقات میں طلوع و غروب ہوتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے روس کی کل آبادی کی تو یہاں تقریباً 14 کروڑ 71 لاکھ 82,123 افراد آباد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روس نہ صرف رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، بلکہ آبادی کے اعتبار سے بھی دنیا کے بڑے ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ روسی عوام سیاحت کے لیے بہت کم دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ روس بذات خود اتنا وسیع، خوبصورت اور جدید ملک ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے ہی وطن کو ایک مکمل تفریحی مقام سمجھتے ہیں۔ برف پوش علاقے، گھنے جنگلات، جدید شہر اور تاریخی مقامات روس کو سیاحت کے لیے خود کفیل بناتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر دنیا بھر میں استعمال ہونے والے نقشہ جاتی نظاموں کی بات کی جائے تو گوگل میپس کو سب سے زیادہ مقبول سمجھا جاتا ہے، لیکن روس میں صورتحال کچھ مختلف ہے۔ یہاں گوگل میپس کو دوسرے نمبر پر رکھا جاتا ہے، جبکہ زیادہ تر روسی شہری یانڈیکس میپ اور 2GIS میپ استعمال کرتے ہیں۔ ان جدید میپ سسٹمز کی مدد سے روس کے کسی بھی شہر یا دور دراز علاقے میں بآسانی اپنی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے، اسی لیے روسی عوام ان پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ماسکو کو دنیا کے امیر ترین شہروں میں بھی شمار کیا جاتا ہے، جہاں 150 سے زائد انتہائی امیر افراد رہائش پذیر ہیں۔
यही वजह है कि मॉस्को को रूस का माशी और मालियाती मरकज भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर रूस में लोगों की अय्याशी और जिंदगी पर नजर डाली जाए तो यहाँ के लोग इंतहाई अय्याश माने जाते हैं। खास तौर पर मॉस्को की नाइट लाइफ, जहाँ दुनिया भर से लोग सिर्फ इसी का मजा लेने के लिए आते हैं। एक तो यहाँ के लड़कियां भी खूबसूरती के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन रशियन लड़कियों का कोई जवाब नहीं। सफ़ेद रंग, ऊंचा कद इनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है। ये लड़कियां जितनी खूबसूरत हैं, इतनी ही ज़्यादा अय्याश और खुले माइंड की समझी जाती हैं। पूरी रात लड़कियां सड़कों पर घूमती हुई नजर आएंगी। मॉस्को की नाइट लाइफ और यहाँ के डांस क्लब की तो बात ही अलग है। कहा जाता है कि रशियन लड़कियां सिर्फ चंद पैसों के लिए भी आपके साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। और दुनिया की बहुत बड़ी कंती मूवीज़ की इंडस्ट्री अमेरिका की तरह यहाँ पर भी मौजूद है, जहाँ हर साल सैकड़ों फिल्में बनाई जाती हैं और रूस की बहुत सी लड़कियां इस शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको कोई रोकथाम नहीं। लड़कियां जो चाहे वो कर सकती हैं, दिन हो या रात। लड़कियां इंतहाई बुरहाना लिबास पहनती हैं, जो कि इनके मज़हब के मुताबिक जायज़ भी है, जैसा कि आप लोग वीडियो में भी देख ही सकते हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मज़हब की तो प्यारे दोस्तों, रूस की आबादी का 71.7% हिस्सा रशियन लोगों पर मुश्तमिल है। 3.2% और लोग दूसरी कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर बात करें यहाँ के लोगों के मज़हब की तो 61% के साथ क्रिश्चियन मज़हब सबसे ज़्यादा है। 24% ऐसे लोग जिनका कोई मज़हब नहीं और बाकी 4% लोग दूसरे मज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर बात की जाए रूस के मेडिकल सिस्टम की तो ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल है। रूसी हुकूमत अपने शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करती है, जिनमें हस्पताल, क्लिनिक्स और मेडिकल शॉप्स शामिल हैं। इस मुल्क में दुनिया के माहिर तरीन और तजुर्बाकार डॉक्टरों की फहरिस्त मौजूद है, जो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अगर रूस के तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो यहाँ की हुकूमत अपने शहरियों को इब्तदाई तालीम से लेकर यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम फराहम करती है। यही वजह है कि रूस दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार होता है जहां तालीम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में तकरीबन 99% आबादी तालीम याफ्ता है। मोहतरम नाजरीन, रूस दुनिया के सर्द तरीन ममालिक में शुमार होता है, लेकिन अगर बात की जाए रूस के सबसे ठंडे इलाके की तो सबसे नुमाया नाम साइबेरिया और खुसूसन याकुतिस्क का आता है। याकुतिस्क रूस के मशरकी हिस्से में वाक़ है और इसे दुनिया के सबसे सर्दाबाद शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत अक्सर -50 से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, जबकि बाज़ औक़ात ये -70 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। याकुतिया ही में वाक़ एक छोटा सा इलाका ओवेमियाकून दुनिया की सबसे सर्द बस्ती कहलाता है। यहाँ 1933 में -67.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो इंसानी आबादी वाले इलाकों में सर्दी का आलमी रिकॉर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड में वहाँ पर लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। ये लोग ख़ास लिबास और खुराक का इस्तेमाल करते हैं। पानी की पाइपलाइन ज़मीन के अंदर डाली जाती हैं ताकि बर्फ़ न जमे। गाड़ियाँ अक्सर चलती हालत में ही छोड़ी जाती हैं, क्योंकि अगर एक बार गाड़ी बंद हो गई तो दोबारा स्टार्ट करना मुश्किल होता है। घरों की बुनियाद अमूमन ज़मीन से काफ़ी ऊंची रखी जाती है। अक्सर बर्फ़बारी में घर ही छुप जाते हैं। प्यारे दोस्तों, परिंदों का बादशाह बाज रूस का कौमी परिंदा है, जबकि रूस का कौमी जानवर रशियन ब्राउन बेयर है। रूस का हुकूमती निज़ाम फेडरल सेमी सदारती निज़ाम कहलाता है, जिसमें इख्तियारात वफाकी हुकूमत और रियासतों के दरमियान तकसीम होते हैं। अगर रूस की मुआशी ताकत की बात की जाए तो ये दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल है। एक अंदाजे के मुताबिक रूस का सालाना जीडीपी तकरीबन 5.4 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, जबकि फीकस आमदनी तकरीबन $38,000 के लगभग बताई जाती है। इसी बुनियाद पर रूस को दुनिया की 5वें बड़ी मुआशी ताकत भी कहा जाता है। रूस को दुनिया के मजबूत तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है और इसकी मईशत की रीढ़ की हड्डी वो सनतें हैं जो आलमी सतह पर उसे मुमताज़ बनाती हैं। इसके अलावा मशीनरी की प्रोडक्ट से लेकर पहनने की प्रोडक्शन, रूस अपनी तमाम चीज़ों को दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करता है। मोहतरम नाजरीन, हर साल 3 करोड़ से ज़ायद लोग रोज़ का विज़िट करने आते हैं। रूस की मईशत का दारोमदार यहाँ आने वाले विजिटर्स पर भी हैं। अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप पाकिस्तान में रूस की एम्बेसी के ज़रिए ऑनलाइन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इंडिया से हैं तो वहाँ भी रूस के विज़िट वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया में रूस के लिए वीज़ा शराइत पाकिस्तान के मुकाबले में आसान है,
इसलिए भारतीय शहरी निस्बतन बाआसानी रूस का सफ़र कर सकते हैं। उमूमी तौर पर रूस का वीज़ा दुनिया के कई ममालिक के मुकाबले में निस्बतन आसान तरीके से हासिल किया जा सकता है, बशर्ते के तमाम मतलूबा दस्तावेज़ात मुकम्मल हों। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूँ, रूस में दुनिया के सबसे बड़े गैस और तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं, जिनसे रूस हर साल करोड़ों लीटर खाम माल निकालता है और दुनिया को फ़रोख्त करता है। रूस का तकरीबन 13 लाख मुरब्बा किलोमीटर का रकबा ज़ेरे काश्त है, यानी इतने बड़े रकबे पर काश्त की जाती है। रूस में ड्राइविंग राइट साइड है। पूरे रूस में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। रूस में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे सिस्टम भी मौजूद है, जिसे ट्रांस साइबेरियन कहा जाता है। इस ट्रांस साइबेरियन के ज़रिए आप पूरे रशिया समेत कई दूसरे मुल्कों का सफ़र भी कर सकते हैं। ये रेलवे सिस्टम की इंतहाई पुरअमन सुकून और आसाइश के साथ पैसेंजर्स को अपने मकाम तक पहुंचाता है। ये ट्रैक 92,000 किलोमीटर लगता है, जो दुनिया के सबसे लंबे रेलवे ट्रैक सिस्टम में शुमार होता है। दुनिया का खूबसूरत तरीन बस ट्राम सिस्टम भी मौजूद है। ज़्यादातर ट्रेन, मेट्रो और बस का सफ़र लोग करते हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा भी मौजूद है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फ़ौज भी इसी के पास मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी रूस के मुताल्लिक बनाई जाने वाली आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब में। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।